بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير كد اضاع العمر فی طلب المحالی. محنت کے مطابق بلندی حاصل کی جاتی ہے، اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، اور جو بغیر محنت کے بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی عمر کو بیکار چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ عبدالوہاب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں مولانا علی خان پڑھ رہے ہیں. آج لیسن نمبر 20 یعنی الدرس العشرون پڑھیں گے. اس لیسن میں فعل امر کی بحث کی گئی ہے. فعل امر امپریٹیو سینٹینس کو کہا جاتا ہے، جو انگلش میں کہا جاتا ہے. فعل امر بنانے کا طریقہ یا قاعدہ مجھے لگتا ہے کہ آخر میں دیے ہوں گے، لیکن میں شارٹ کٹ میں بتا دے رہا ہوں. ویسے اسی چینل سے کنجوگیشن کے اندر میں فعل امر پہ میں نے بحث کی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے میں نے سمجھایا ہے. آپ مزید جانکاری کے لیے آپ کنجوگیشن میں دیکھ لیں گے. فعل امر فعل ماضی سے بنتا ہے، پاسٹ ٹینس سے بنتا ہے. اب عربی میں گرامر سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک پاسٹ ٹینس کا لیا جاتا ہے اور ایک پریزنٹ ٹینس کا لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ اجلس ہے تو جلس تھا، جلس یہاں لکھنا مشکل ہے، جلس، اور اس کے بعد آتا ہے یجلسو. تو ظاہر سی بات ہے امپریٹیو سینٹینس تو سامنے والے کو کہیں گے نا، یعنی سیکنڈ پرسن سے آرڈر کریں گے. امپریٹیو سینٹینس یا جو بھی کچھ کہیں گے، مشورہ دیں گے، ایڈوائس دیں گے، آرڈر دیں گے، سامنے والے کو دیں گے، تھرڈ پرسن کو تو نہیں دے سکتے ہیں. تو جلس سے یجلسو بنا، یجلسو سے بنا تجلسو، یعنی تم بیٹھتے ہو. جلسا وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے، تجلسو تم بیٹھتے ہو. اب تم بیٹھتے کو ہی ہم فعل امر بنا سکتے ہیں نا. تو تجلسو کو مان لیجئے تجلسو، یعنی جلسا سے مان لیجئے جلسا یجلسو. لام پر زیر ہے یجلسو میں، تو اگر لام پر زیر ہے تو الف پہ لگائیں گے یجلسو، یعنی فعل مضارع کے تا کو ڈراپ کر کے الف لگا دیں گے اور کہیں گے اجلس، یعنی تجلسو سے بنا ہے اجلس. تو کیا پتہ چلا، تجلسو میں تا کو ڈراپ کیے، تا کی جگہ پہ الف لگا دیے. لام پر زیر تھا تو لام پر زیر ہی آگے، اور تجلسو تھا تو سین پر پیش لگا دیے. یعنی بیچ والے لیٹر پہ اکارڈنگ ٹو اگر زیر زبر فتح ہے تو وہ ہوگا، اور لاسٹ والا لیٹر ہمیشہ سکون رہے گا، جس کو ہم جزم کہتے ہیں. تو تجلسو تم بیٹھتے ہو، اور اجلس تو بیٹھ جا. کتب، اس کے بعد ہے یکتبو، یکتبو سے بنا ہے تکتبو. اب تکتبو تو تے پر پیش ہے، تک تو تے پر پیش ہے تو الف پر بھی پیش ہوگا. یہاں پہ لام پر زیر ہے یجلسو تجلسو، تو اجلس بنا تکتبو تو الف پر پیش بنا اکتب. یعنی دو قاعدہ صرف ہے، یہ سمجھ لیجئے. اسی طرح قرأ یقرؤ، یقرؤ تم پڑھتے ہو، یعنی تقرؤ تم پڑھتے ہو، اسی سے پڑھا ہے اقرأ. دیکھیے کسرہ لاسٹ میں سکون ہے. فتح امپورٹنٹ چیز ہے، فتح یفتحو. تے پر جو بیچ والا لیٹر ہے اس پہ زبر ہے، اس کے باوجود امپریٹیو سینٹینس میں الف پہ زیر ہی رہے گا. یعنی پتہ چلا کہ سیکنڈ لیٹر پہ اگر زیر ہے فعل مضارع میں تو فعل امر کے الف پہ زیر رہے گا، اور اگر زبر ہے تو امر پہ زیر ہی رہے گا، لیکن پیش ہے تو الف پر پیش رہے گا. تو اس طرح سے بنا اجلس، آپ بیٹھ جائیے یا تم بیٹھ جاؤ، جو بھی کہہ لیجیے آپ. اکتب لکھو، لکھیے. اقرا پڑھو، پڑھیے. افتح کھول دیجیے یا کھول دو. اب رہی بات کل، کل بنا ہے کھانے کے معنی میں، تاکلو ہے، تاکلو سے ہوگا او کل، او کل، او کل. تو بولنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اس الف کو ڈراپ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کل، کھا لو. اذهب جاؤ، ذهب یذهب،
तजहबु, तजहबु से बना है इजहब, फेल पर हे पर जबर है, इस वजह से अलिफ ज़ेर हो गया। उसी तरह अखज़ या अखुज़ु, ताखुज़ु सा, ताखुज़ु था तो उससे बना ताखुज़, ताखुज़ से बना खुज़, उखुज़ बना, उखुज़ से बना खुज़, अलिफ को ड्रॉप कर दिया, दो डबल अलिफ नहीं रहेगा, इसलिए सबको ड्रॉप करके खुज़ बना दिया गया। दखला यदखुलु, खे पर पेश है इसलिए उदखुल, उक्तुब जैसे तो ते पर पेश है तो उक्तुब हुआ, तो खे पर पेश है तो उदखुल हो गया। ओके, ये इतना फेल अम्र हो गया। इजलिस आप बैठ जाइए, उक्तुब लिखिए, इकरा पढ़िए, इफ्ताह खोल दीजिए, कुल खा लीजिए, इजहब चले जाइए, खुद इसको लीजिए और उदखुल दाखिल हो जाइए। मतबख बावर्ची खाने को कहते हैं, असल्लाजतुन को फ्रीज को कहते हैं या रेफ्रिजरेटर, जो भी कर लीजिए उसी को कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। मतबख, मतबख है, ये मतबख है। ओके, अब सामने है, पढ़िए लिखिए और तर्जुमा कीजिए। तो पढ़ना लिखना तो है। हामिदुन यज़हबु इलल मदरसी, मदरसती, हामिद मदरसा जाता है, व अंत इज़हब इलल बैत, और तू चला जा घर की तरफ। तो यह अंत की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए लगा दिया गया है। इज़हब इलल बैत, घर चले जाइए। तकतुबु फातिमतुर रिसालतु, फातिमा खत लिखती है। वो अंती या ज़ैनब, ए ज़ैनब आप पे उक्तुबी अदरसा, आप खत लिखिए, मीन लेसन को लिखिए, उक्तुबी। अहमदु यफ्तहुल किताबा, अहमद किताब खोलता है। व अंता या खालिद इफ्तह अल बाब, अहमद किताब खोलता है और आप दरवाजा खोलिए। देखिए सेंटेंस कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं, देखिए जैसे वे लिखते हैं। या राशिद इफ्तह अल कुर्रासता व खुजिल कलमा वक्तुबि दरसा, ए राशिद कॉपी खोलिए और कलम लीजिए और लेसन को लिखिए। या फातिमतु इज़हबी इलल बैति वफ्तहिल बाबा वजलसी मअल अलल मक़दी, ए फातिमा आप अपने घर जाइए, यानी मुअन्नस के लिए इज़हबी हुआ, मुज़क्कर के लिए इज़हब था, मुअन्नस के लिए इज़हबी होगा। और दरवाजा खोलिए और अपने जगह पे बैठ जाइए। अंता या अहमद इज़हब इलल मदरसते, ए अहमद आप मदरसा जाइए, स्कूल जाइए। व उदखुलिल फस्ला, क्लास रूम में दाखिल हो जाइए। वफ्तहिल किताब, किताब खोलिए। वक़राई दरसा, और किताब पढ़िए। अंती या ज़ैनब उदखुलिल मतबखा वफ्तहिल सल्लाजा वकुली तुफ़ाहा, ऐ ज़ैनब आप कहाँ जाइए, मतबख में जाइए, मतलब कि बहुत खाने जाइए और फ्रिज को खोल करके सेब खाइए। पहले अम्र दर्ज झेल तस्रीफात को उनके माना कैसे याद कीजिए। अब ये माना तो कहा बताया जाए। अंततः ये फेल अम्र में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ओके, ये समझ लीजिएगा। इज़हब अगर एक ही चीज मैं कहूँ तो यहाँ तक हो जाएगा, इसलिए कि फेल अम्र इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 छह ही फेल अम्र होता है। तो अगर एक को याद कर लेंगे ना तो काफी हो जाएगा। इज़हब चला जा, इज़हबा तुम दोनों चले जाओ, इज़हबू तुम सब लोग चले जाओ, उज़हबी वो तुम चली जाए, यानी मुअन्नस के लिए, और इज़हबा ये भी मुअन्नस के लिए, तुम चले जाओ औरतों के लिए, और इज़हबना वो लोग चले जाएं, तुम लोग चली जाओ। 3 मुज़क्कर के लिए है और 3 मुअन्नस के लिए है। उसी तरह उक्तुब इजलिसी, उक्तुब लिखो, इजलिस बैठ जाओ, उक्तुबा तुम दोनों लिखो, इजलिसा तुम दोनों बैठ जाओ, उक्तुबू तुम दोनों लिखो, इजलिसु तुम दोनों बैठ जाओ। इसी तरह मतलब होगा। उक्तुबी लड़की के लिए कहा जा रहा है, तुम लिखो, इजलिसी बैठ जाओ। उक्तुबा तुम दोनों लड़की लिखो, इजलिसा बैठ जाओ। उक्तुबना और इजलिसना, यही तो तरकीब है। ये याद करने के लिए कहा जा रहा है। तो 6 तो सिर्फ याद या 6 ही तो है, पहले अम्र में तो 6 ही होगा ना। इंग्लिश में तो सिर्फ ये इतने ही पे काफी काम चला रह जाता, सिर्फ एक है। ओ माय फ्रेंड रीड दिस बुक। ओके, तो इसलिए कि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद और जमा इंग्लिश में दोनों सबके लिए एक ही इस्तेमाल होता है, और अरबी में 3 का इस्तेमाल होता है। तो माना समझ गए होंगे आप। अगर समझ में बात नहीं आ रही है तो आप मेरे कंजुगेशन को देखिएगा, इसी चैनल पे है। आइए,
जुमलों की तस्हीह कीजिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सोचने वाली बात है। आप भी मेरे आवाज को बंद करके आपने पहले सही कर लीजिएगा, उस बाद सुनिएगा तो बेहतर होगा, जैसी मर्जी आपकी। इज़हबी या हामिद इलल मदरसती व फातिमा तो उक्तबी अदरस। ऐ हामिद स्कूल चली जाओ, सॉरी, या हामिद मुजक्कर है तो यहाँ पे इज़हब होना चाहिए, इज़हब या हामिद इलल मदरसती। व या फातिमा उक्तबी दर्स है, ये तो ठीक है, आप फातिमा लेसन को लिखो, तो यहाँ पे इज़हब होगा। या फातिमा तो इज़हब है यहाँ पे, तो इज़हबी कहिए, इज़हब इलल बैती वफ्तहिल बाबा, और इफ्त दरवाजा खोलिए, वजलिसी होगा, वजलिस नहीं होगा, वजलिसी अलल मक़दे, यानी यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलती है और यहाँ पे गलती है। ओके। या खालिद इफ्तहिल बाबा, खालिद दरवाजा खोलो, वदखुलिल फसला, और दाखिल हो जाओ क्लास में। बिल्कुल गलत नहीं है ये, मैं चैलेंज कर दूंगा इस पे, यहाँ पे कहीं गलती नहीं उन्होंने कहा है तस्हीह करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे तो उन्होंने, ये तो गलत है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा। अंती या जैनब उदखली अलमतबखा, जैनब है तो मुअन्नस से उदखली अलमतबखा, वफ्तही होगा, तो यहाँ पे गलत है, वफ्तही असर आ जाता है, यहाँ वफ्तही होना चाहिए। वह खुजिल लहमा, ये भी सही है, और गोश्त लीजिए। लेकिन सेंटेंस नंबर 3 में कोई गलती नहीं है। दिस इज माय चैलेंज। या खालिद इफ्तह अलबाबा वदखुल अलफसल, एकदम सही है। अंत या हामिद इजहब इलल हदीक़ती, यहाँ तक सही है, बाजार जाइए, ये कहाँ गार्डन में जाइए। वजलिसी अलल मक़दी है, तो यहाँ पे इजलिस होगा, यहाँ पे ये गलती है। इसका पता चला कि इसमें गलती नहीं है, लेसन नंबर 3 में, सेंटेंस नंबर 3 में, और बाकी में एक एक गलती है। खाली जगह पूरी कीजिए, ये भी अच्छी बात है, ये आप अपने से भर सकते हैं, लेकिन मैं कर देता हूँ। या अंत या अहमद इजहब इलल मदरसती वदखुलिल फसला, और हाँ वदखुलिल फसला, क्लास रूम में दाखिल हो जाओ। या फातिमा इजहबी इलल बैते, इजहबी घर जाइए, यहाँ पे इजहब होगा, इजहबी होगा। वो इफ्तही अलबाबा वजलसी अलल मक़दी। या अंत या ज़ैनब इक़रई दरसा की, अपने अपने लेसन को पढ़ो, वक्तुबी फिल कुर्रासती। या राशिद क्या है, इफ्तह अल कुर्रासता, इफ्तह होगा, व खुजिल कलम, कलम को लो, वक्तुबु दरसा, लेसन को लिखो। अंत या ज़ैनब क्या है, इतबखी अलमतबख, उदखुली अलमतबखा, वफ्तही अस्सलाजता, वकुली अतुफ़ाहा। पता चल गया होगा, समझ में बात आ रही होगी। ये भी एक है, काम करने की चीज है, बहुत बेहतरीन है। जैसा कि मैंने बोला था कि सेकंड पर्सन से ही तो फेल अमर बनेगा, तो देखिए सेकंड पर्सन है। दर्जे झेल अफ़ाल से अम्र मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों बनाइए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपको बनाने का काम है, मैं आपको बोल कर इस्तेमाल करा देता हूँ। खतबा से तक्तुबु है तो उक्तुब, उक्तुब और उक्तुबी, मुज़क्कर मुअन्नस जुमला बना लीजिएगा। तज़हबु से इज़हब, इज़हबी। तफ्तहु से इफ्तह, इफ्तही। तक़रउ से इक़रा, इक़रई। तजलिसु से इजलिस, इजलिसी है। बाकी अपना जुमला बना लीजिएगा। दर्जे झेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। तुम यानी मुज़क्कर, स्कूल जाओ और क्लास में बैठो। इज़हब इलल मदरसती वजलिस फिल फस्ली। फातिमा तुम घर जाओ और खाना खाओ। या फातिमा इज़हबी इलल बैति वकुली अत्ताम। राशिद तुम दरवाजा खोलो और कमरे में दाखिल हो जाओ। या राशिद इफ्तह अल बाबा व उदखुल अल हुजरता, कमरे में दाखिल हो जाओ। तुम मुअन्नस के लिए बाग में जाओ। इज़हबी इलल हदीक़ती, माली से फूल लो। वो खुजी फूल का अज़्ज़ारता, माली का क्या होता है, बहरहाल कुछ भी होगा, वॉचमैन, वॉचमैन माली, जो भी होगा वो माली, माली से फूल लो।
माली हदीक़तुल साहिब الحدीक़ती, माली से पूछ लो। अहमद तुम कॉपी लो, कलम लो और सबक पढ़ो। या अहमद खुज़ अल कुर्रासता व खुज़ अल कलम व उक़रा अद-दर्स। फातिमा तुम कलम लो और सबक लिखो और उसको पढ़ो। ए फातिमा खुज़ अल कलम और उक्तुब दरसा व इक़राहा। माली गार्डनर, एक मिनट बताता हूँ। हाँ तो जनाब ये कहा जाता है माली जो है, माली को बुस्तानी कहा जाता है। बुस्तानी व खुज़िल ज़ारा मिनल बुस्तानी। अहमद फातिमा तुम कलम लो, सबक लिखो, शुरू हो चुका है। अब कायदा थोड़ा सा बहुत गौर से पढ़िएगा, वैसे मैंने बता दिया है। फ़िल अम्र वह फ़िल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे इज़हब इलल बैत, घर चले जाइए। इसके 6 सीगे आते हैं, पहले बता चुका हूँ। फ़िल अम्र मुज़ारा हाजिर मारूफ से बनाया जाता है, यानी सेकंड पर्सन से। सबसे पहले अलामत मुज़ारा को हज़फ करें, यानी वाव यानी तक ख़त्म करें। फिर अगर पहला हर्फ साकिन है तो शुरू में हमजा वस्ल पर ज़म्मा दें, साकिन है तो पेश लगाएं, जैसे कतबा तक्तुबु से उक्तुब। और अगर ऐन कलमा मफ्तूह या मकसूर हो तो हमजा वस्ल पर कसरा दे, जैसे तफ्तहु से इफ्ताह होता। जो मैं बात कर रहा हूँ तो वही यानी क्या आई मीन मिडिल लेटर जो है ना, अगर मिडिल लेटर में पेश है तो हमजा पे पेश लगेगा, और जबर या जेर है तो हमजा पे जेर लगेगा, जैसे इफ्ताह तदरिब से इजरिब। हर्फ आखिर को साकिन कर दें, लास्ट में हमेशा साकिन रहता है, बता चुका हूँ। अगर हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा दें, मैं जैसे कि बता दूंगा। वॉविल्स हो तो जैसे तदऊ से उदऊ, तखनी से इख्श, तस्निया जमा वाहिद मौला जमा मुज़क्कर वाहिद वाले से नून एराबी को हज़फ कर दें, और अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसे गिरा दें, जैसे ला तदऊ से ला तदऊ। इस तरह से ये फ़िल अम्र का कायदा भी ख़त्म हो चुका है। और आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में अकाई नंबर 3 होगा, 21 मिनट, लेसन नंबर 21। बहरहाल मेरी नई ख्वाहिशात आपके साथ, आप लोगों से गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ अरबी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नई ख्वाहिशात, हाँ मैं कह देता हूँ कि इसी चैनल पे मैं यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आपके दोस्तों में से जो एमए कर रहे हैं या कर चुके हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सुदमंद है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।